آج کی ویڈیو کا ایک ہی بڑا سوال ہے، کشمیر آخر کس کا ہے؟ کیا کشمیر افغانیوں اور ایرانیوں کا ہے؟ کیا کشمیر چین والوں کا ہے؟ کیا کشمیر ہندوؤں، مہاراجاؤں، مسلمانوں، ٹھاکروں، ڈوگروں کا ہے؟ تو جواب یہ ہے کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، جبری گمشدگیاں، گرفتاریاں، گھروں کی گولیاں زدہ دیواریں، پیلٹ گن کے چھروں سے چھلنی وجود، بے نور آنکھیں، لاپتہ مردوں کا انتظار کرتی ہوئی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، اور وہ نوجوان جو قابض فوج کے تاریک عقوبت خانوں میں مارے گئے، ان کا انتظار کرتی ہوئی مائیں، اور ظلم و جبر کے سائے میں پلتی ہوئی سسکتی بلکتی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ کہتے ہیں یارانے جہاں کشمیر کو جنت، یہ کون سی جنت ہے جہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دی گئی ہیں؟ یہ کون سی جنت ہے جس پر قبضے کا خواب ہر حکمران نے دیکھا؟ کسی نے اس پر ظالمانہ قبضہ کیا تو کسی نے اس کشمیر کو فتح کیا۔ کشمیر کی تاریخ اداسیوں، رنج، الم، بے بسی اور لہو و لالہ سے بھرپور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کشمیر کی اس تاریخ پہ بات کریں گے جس پر آج سے پہلے شاید کبھی بات نہ کی گئی ہو۔ آج ہم آپ کو کشمیر کا وہ رخ دکھانے جا رہے ہیں جو رخ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے دکھایا۔ کشمیر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ دھرتی ہے جو ہمیشہ سے ہی قہر کے سائے میں پلتی رہی ہے۔ کشمیر پر 300 سال قبل مسیح میں ایک بدھا راجا اشوکا کی حکومت تھی۔ اشوکا کی موت کے بعد کشمیر پر پارتھیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت اس کا نام کشمیر نہیں تھا۔ پھر ایک پارتھی راجا جامو لوچن نے ایک شہر آباد کیا، اس کی نسبت سے اس کا نام جموں رکھا گیا۔ پھر ایک راجا کشب مرشی نے ایک شہر آباد کیا اور اس کی نسبت سے اس کا نام کشب مر رکھا گیا۔ بعد میں یہ کشب میریا ہو گیا اور پھر یہی نام بگڑ کر کشمیر بن گیا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 182 عیسوی میں یہاں پر یوچی قوم کے قبیلے کشان کے ایک راجا کنشک نے پارتھیوں پر حملہ کیا۔ اس نے پارتھیوں کو شکست دی اور اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس کا نام کنشک کا تھا۔ کنشک کی حکومت ان دنوں میں کوہستان، بندیاچل، پامیر، سندھ کے بالائی علاقے، کندھار تک پھیلی ہوئی تھی۔ کشان جب اس علاقے میں پہنچے تو ان کی نسبت سے اس کا نام کشمیر رکھا گیا، بعد میں یہ نام کشمیر بن گیا۔ کشان بھی بدھا سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں کشمیر ایک بار پھر پارتھیوں کے قبضے سے نکل کر بدھا کے پاس چلا گیا۔ کشان قبیلے نے 400 سال تک کشمیر پر حکومت کی۔ 5ویں صدی کے آخر میں ایک ہندو راجا ماہیرا کولا نے یہاں سے بدھ مت کا خاتمہ کیا اور ہندو برہمن مذہب کی بنیاد رکھی۔ یوں کشمیر ایک بار پھر ہندوؤں کے قبضے میں چلا گیا۔ تاریخ کے سارے مورخین اس بات کے گواہ ہیں کہ ماہیرا کولا کشمیریوں کے لیے ظلم و جبر کی علامت تھا۔ اس نے یہاں پہ موجود پارتھیوں پہ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال ملنا تاریخ میں انتہائی مشکل ہے۔ کشمیریوں کو تھوڑا سا سکھ کا سانس اس وقت نصیب ہوا جب 790 میں یہاں پر ایک اور ہندو حکمران لالی تادیتا کی حکومت آئی۔ لالی تادیتا نے تبت اور بھوٹان کے علاقے فتح کر کے انہیں کشمیر کی سرحد میں شامل کیا۔ لالی تادیتا کے خاندان نے تقریباً 200 سال تک کشمیر پر حکومت کی۔ پھر 993 سے لے کر 1060 تک یہاں پر ایک اور راجا اونتی ورما نے بادشاہت کی۔ اونتی ورما کے نام سے ہی کشمیر کا مقام اونتی پورہ آج بھی موجود ہے۔ اونتی ورما نے بہت سارے نئے علاقے فتح کر کے کشمیر میں شامل کیے اور اسی نے ایک مرتنڈ مندر قائم کیا۔ اس مندر کے آثار آج بھی کشمیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اونتی ورما کے خاندان کی حکومت 11ویں صدی کے آخر تک قائم رہی۔ اس خاندان کی آخری حکمران رانی ودی تھی۔ 12ویں صدی کے آغاز میں راجا سنگرام سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور یوں کشمیر ایک بار ہندوؤں کے قبضے سے نکل کر سکھوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کشمیر تو ایک کھلونا تھا جو پہلے بدھا، پھر یوچی، پھر بدھا، پھر ہندو اور اب سکھوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ اس سے جتنا جی چاہیں وہ اس سے کھیل سکتے تھے۔ اسی دور میں مسلمانوں نے بھی کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت میں سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی نے کشمیر پر ابتدائی حملے کیے، مگر یہ حملے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد 1285 سے لے کر 1325 تک
यहाँ पर बोहर ख़ानदान की हुकूमत रही और ये ख़ानदान हिंदू ख़ानदान था। सिखों की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद कश्मीर एक बार फिर हिंदुओं के हाथों में चला आया। ये वो दौर था जिस दौर में मुसलमान सूफिया इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया की मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रही थी। इसी दौरान एक सूफ़ी सैयद अब्दुर्रहमान उर्फ बुलबुल शाह ने कश्मीर का दौरा किया। इस वक्त में कश्मीर में हिंदू राजा था जिसका नाम राजा रंचन था। राजा रंचन सैयद अब्दुर्रहमान उर्फ बुलबुल शाह की तालीमात से मुतासर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये 1325 का दौर था। यूँ कश्मीर में पहली मर्तबा मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत कायम की और राजा रंचन का नाम सदरुद्दीन रखा गया। इसी के नाम से कश्मीर में मोहल्ला बुलबुल नगर बना और आज भी बुलबुल नगर में बुलबुल शाह के मज़ार के सहन में सदरुद्दीन की कब्र मौजूद है। सदरुद्दीन की वफ़ात के बाद उसकी बीवी कश्मीर की रानी बन गई। दिलचस्प बात यह है कि उस रानी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए कश्मीर एक बार फिर हिंदुओं के कब्ज़े में चला गया। 1339 में उस रानी ने खुदकुशी कर ली तो कश्मीर पे एक बार फिर मुसलमान हुक्मरान वारद हुए। हिंदू रानी की खुदकुशी के बाद कश्मीर एक बार फिर मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आ गया और यहाँ पर सुल्तान मीर शमसुद्दीन की हुकूमत हुई। सुल्तान मीर शमसुद्दीन की हुकूमत यहाँ पे 1359 तक कायम रही। सुल्तान मीर शमसुद्दीन का मज़ार आज भी मौज़ा संबल में मौजूद है। इसी ख़ानदान से सुल्तान शहाबुद्दीन ने 1360 से लेकर 1378 तक हुकूमत की। इन 18 सालों में सुल्तान शहाबुद्दीन ने तिब्बत, कंधार, मुग़मान और पेशावर के इलाके फ़तह करके यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत कायम की। सुल्तान शहाबुद्दीन के बाद हुकूमत आती है सुल्तान सिकंदर के ख़ानदान के पास। सुल्तान सिकंदर के दौर में अमीर तैमूर ने 1399 में कश्मीर को फ़तह करने की ख्वाहिश की। अभी वो कश्मीर को फ़तह करने के लिए जंग करते हुए आ रहा था कि सुल्तान सिकंदर ने अपने वज़ीर सैफुद्दीन को अमीर तैमूर के पास भेजा। सैफुद्दीन कई तोहफे लेकर गया और उसने अमीर तैमूर को अटक के मुकाम पे रोका और उसके साथ मुज़ाकरात करके उसे जंग बंदी के लिए आमादा कर लिया। यूँ अमीर तैमूर की कश्मीर को फ़तह करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सुल्तान सिकंदर 1447 में फौत हुआ तो उसका बेटा सुल्तान अली शाह तख्त नशीन हुआ और 5 साल बाद सैफुद्दीन का छोटा भाई शाही खान उसका वज़ीर बना। हुकूमती मामलात में शाही खान और सुल्तान अली शाह के दरमियान नाचाकी हुई। नौबत जंग तक जा पहुंची तो फ़ौज ने शाही खान का साथ दिया और सुल्तान अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और यूं तख्त पर शाही खान बैठा। शाही खान ने 1463 से लेकर 1474 तक कश्मीर पर हुकूमत की। इसने सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का लक़ब पाया और बट शाह के नाम से मशहूर हुआ। आज भी बडगाम में बट शाह का मकबरा मौजूद है। शाही खान के ख़ानदान की हुकूमत 1554 तक कश्मीर पर रही। 1554 में इसका आखिरी बादशाह सुल्तान हबीब था। 1554 में सुल्तान हबीब को गाजी खान चुक ने शिकस्त देकर यहाँ पे चुक ख़ानदान की हुकूमत कायम की। ये हुकूमत 1586 तक जारी रही। ये वो वक्त था जिस वक्त हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान के अकबर आज़म की हुकूमत थी। 1586 में अकबर आज़म ने मीर मोहम्मद कासम खान को कश्मीर पे हमला करने के लिए भेजा और उसने चुक ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा करके यहाँ पर मुगलिया हुकूमत का आगाज़ कर दिया। ये बात हम जानते हैं कि मुगलिया बादशाह सैर व सियाहत, ऐशो इशरत और फ़न तामीर के दिल दादा थे। उन्होंने कश्मीर के साथ भी यही रवैया रखा और कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए कोई काम ना किया। ये जगह अकबर आज़म को इतनी अच्छी लगी कि उसने यहाँ पर 3 साल मुसलसल सियाहती दौरे किए। 1587, 1588 और 1589 में उसने कश्मीर के दौरे किए। यहाँ पर किला हरी पर्वत तामीर किया गया मगर यहाँ के अवाम के लिए कुछ ना किया गया। अकबर के बाद बारी आती है जहांगीर की, तो जहांगीर ने भी कश्मीर के कई सियाहती दौरे किए। अपनी किताब तौज़क जहांगीर में जहांगीर ने कई मुकामात का जिक्र किया। उसके बाद बारी आती है औरंगज़ेब आलमगीर की, तो उसने भी कश्मीर के कई सियाहती दौरे किए। उन्हें लगता था कि ये ज़मीन पे जन्नत का नमूना है मगर इस जन्नत के नमूने के लोगों के लिए उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना किया। आलमगीर की वफ़ात के बाद मुगलिया सल्तनत लड़खड़ाने लग गई। शहजादे आपस में तख्त नशीनी के लिए जंगें करने लग गए और उसका ये असर कश्मीर पर भी ज़ाहिर हुआ। शहजादों ने कश्मीर को सिर्फ ऐशो इशरत का मरकज़ तो बनाए रखा मगर यहाँ के अवाम के लिए कुछ ना किया। जब मुगलिया ख़ानदान के शहजादों की आपस की खाना जंगियों की वजह से सल्तनत इंतहाई कमज़ोर हो गई
तो अहमद शाह अब्दाली ने 1753 में कश्मीर को फतह कर लिया और यूं कश्मीर एक बार अफ़गानियों के कब्ज़े में चला गया। 1818 तक यहाँ पर अफ़गान बादशाहों की हुकूमत कायम रही। आइए ज़रा अब चलते हैं पंजाब की तरफ। 19वीं सदी के आगाज़ में पंजाब पे राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। राजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कई हमले किए मगर वो कामयाब ना हो सका। 1818 में पंडित बीरबल, पंडित सहजराम अपने बेटे राजा काक और पंडित मिर्ज़ा के साथ राजा रंजीत सिंह को मिला और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि अगर राजा रंजीत सिंह कश्मीर पे हमला करेगा तो वो उसका साथ देंगे। राजा रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा लश्कर दीवान चंद जफर, सरदार हरि सिंह नलवा, शहजादा खड़क सिंह को देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा। इन लोगों ने पीर पंजाल के रास्ते कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर फतह कर लिया। राजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पंडित बीरबल और राजा हरि सिंह नलवा को दे दिया। यूं कश्मीर पे मुसलमानों की कई सौ साल की हुकूमत ख़त्म हो गई और कश्मीर एक बार फिर सिखों और हिंदुओं के कब्ज़े में चला गया। ये दौर कश्मीरियों के लिए इंतहाई मुश्किल का दौर था क्योंकि ये वो वक्त था जिस वक्त कश्मीर की आबादी 80% से ज़ायद मुसलमान हो चुकी थी और उसके हुक्मरान हिंदू और सिख थे। हिंदू और सिख हुक्मरानों ने मुसलमान कश्मीरियों से जमकर बदले लिए। उन्हें ज़लीलो रुस्वा किया जाता, उनकी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई और ये मामला चलता रहा 1846 तक। आखिरकार तारीख़ ने 1846 में एक नया मोड़ लिया और तारीख़ के इस मोड़ का ताल्लुक़ था पंजाब के साथ। 1809 में पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदा किया कि अगर अंग्रेज़ पंजाब की सरहद में दखल अंदाज़ी ना करें तो राजा रंजीत अंग्रेज़ों की हुकूमत में दखल अंदाज़ी नहीं करेगा। ये मुआहदा बहुत कामयाबी से जारी था कि राजा रंजीत सिंह की वफ़ात हो गई। राजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब का तख्त आता है उसके बेटे दलीप सिंह के पास। दलीप सिंह कम उम्र था, असल हुकूमत उसकी माँ और मशीरों के हाथ में थी। राजा दलीप सिंह को इस बात के ख्वाब दिखाए गए कि अगर वो अंग्रेज़ों को सतलुज के पार हमला करके बरे सगीर से भगा दे तो पूरे बरे सगीर पे सिखों की हुकूमत कायम हो सकती है। राजा दलीप सिंह ने अपने बाप राजा रंजीत सिंह का अंग्रेज़ों के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया और 8 दिसंबर 1845 को सतलुज के किनारे अपनी फ़ौजें जमा कर दीं। उस वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेनरी लॉर्डन था। उसने सुलह सफाई से मामलात हल करने की कोशिश की लेकिन दलीप सिंह का दिमाग उस वक्त मुकम्मल अरूज पे पहुंचा हुआ था। उसने हर किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 14 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हेनरी ने अंग्रेज़ फ़ौज को जंग करने का हुक्म दे दिया। कई मुकामात पर कई खूनख्वार जंगें लड़ी गईं। 17 दिसंबर को अम्बाला बसियान के मुकाम पर एक खूनख्वार जंग हुई लेकिन इस जंग में अंग्रेज़ों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 18 दिसंबर को मदकी के मुकाम पर दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। इस जंग में अंग्रेज़ों के कई सिपाही मारे गए लेकिन अंग्रेज़ों ने सिखों की कई तोपों पर कब्ज़ा कर लिया। आखिरकार अंग्रेज़ों को 31 दिसंबर 1845 में लाहौर से फ़ौज बुलाना पड़ी ताकि वो सिखों की फ़ौज का मुकाबला कर सकें। उसके बाद 21 जनवरी को बद्दोकी के मुकाम पर दोनों फ़ौजों का आमना सामना होता है। इस जंग में भी अंग्रेज़ों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 28 जनवरी को अंग्रेज़ों ने एक डोगरा राजा गुलाब सिंह को अपने साथ मिला लिया। गुलाब सिंह की गद्दारी की वजह से सिख ये जंग हार गए और यूं आखिरकार जनवरी 1846 में पंजाब के साथ साथ कश्मीर भी सिखों के हाथ से निकल गया और यूं कश्मीर पे हुकूमत कायम हुई अंग्रेज़ों की। 1846 में अंग्रेज़ों ने कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए नानक शाही के एवज़ फ़रोख्त कर दिया और अब कश्मीर डोगरा राजाओं के हाथ में आ गया। कश्मीर की 80% से ज़ायद आबादी मुसलमान और इसका हुक्मरान एक डोगरा राजा। डोगरा राजाओं की मुसलमानों से नफ़रत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि डोगरा राजाओं ने हुकूमत हासिल करते ही ये हुक्म जारी किया कि कोई भी मुसलमान किसी डोगरा राजा के सामने सुबह के वक्त नहीं आ सकता, दोपहर से पहले उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। डोगरा राजा ये नहीं चाहते कि वो किसी मुसलमान का सुबह सुबह मुँह देखें और उनका मूड ख़राब हो जाए। मस्जिदों को अस्तबलों और बारूद खानों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों के अजान देने पे और जुमा और ईदैन के खुतबों पर पाबंदी लगा दी गई। ये कश्मीरियों की ज़िंदगी में स्याह तरीन दौर था। 1858 में महाराजा गुलाब सिंह फौत होता है
تو اس کی جگہ پر حکومت آتی ہے راجہ رنبیر سنگھ کے پاس۔ راجہ رنبیر سنگھ 1885 تک حکمران رہتا ہے اور اس کے بعد حکومت آتی ہے راجہ پرتاپ سنگھ کے پاس، اور راجہ پرتاپ سنگھ 1925 تک حکومت کرتا ہے۔ 1925 کے بعد یہ حکومت آتی ہے راجہ ہری سنگھ کے پاس۔ یہاں پہ ڈوگرا راجہ تبدیل ہوتے رہے مگر کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ کشمیریوں کے لیے ظلم کی رات سیاہ ہی رہی، ان کی زندگی میں خوشحالی اور آزادی کا کوئی سورج طلوع نہ ہو سکا۔ ڈوگرا راجاؤں کا ظلم جب ایک حد سے بڑھ گیا تو آخرکار کشمیر کے لوگ اپنے حق کے لیے بولنے لگے۔ وہ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ جب ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کو کاٹنے کے لیے کسی نہ کسی کو اٹھنا پڑتا ہے۔ اسی وقت میں بہت سارے ایسے رہنما اٹھے جنہوں نے ڈوگرا راجاؤں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، مگر انہوں نے اسے بھی دبا دیا۔ سبز علی خان اور ملی خان کو اس حال میں قتل کیا کہ ان کی کھال اتروا دی گئی اور وہ ابھی زندہ تھے۔ ڈوگرا راجاؤں نے اس ظلم کے ساتھ کشمیریوں کی حریت کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، مگر اب یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ کشمیری اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دھرتی کے ماتھے سے لہو کا ٹیکا اتار کر اس دھرتی کے ماتھے پہ امن کا جھومر لہرائیں گے اور اس دھرتی پہ سسکتی گونجوں کی جگہ پہ کلکاریاں سنیں گے۔ 1829 میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم پارٹی بنائی اور اسی دور میں اے آر ساگر اور غلام عباس نے ینگ مین ایسوسی ایشن قائم کی۔ کشمیریوں کا جذبہ حریت اب بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف ڈوگرا راجاؤں کا ظلم و ستم بھی اپنی اخیر کر رہا تھا۔ 1831 میں بریلی میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ 1831 ہی میں ایک پولیس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ بات کشمیریوں کے لیے ایک تازیانے سے کم نہ تھی۔ ہزاروں کشمیری سڑک پر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس احتجاج کو دبانے کے لیے ڈوگرا حکومت نے سخت احکامات جاری کر دیے۔ ہزاروں گرفتاریاں کی گئیں۔ انہی گرفتاریوں میں ایک گرفتاری نوجوان عبد القدیر کی بھی کی گئی، جس کی تقریروں نے کشمیریوں کے لہو کو گرما دیا تھا۔ 13 جولائی 1931 کو عبد القدیر کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ہزاروں کشمیری عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ وہاں پر پولیس بہت زیادہ تعداد میں بلا لی گئی اور ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے کشمیر کی آزادی کے رخ کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ایک نوجوان نے دیوار پہ چڑھ کے ظہر کی اذان دینا شروع کی۔ پولیس نے گولی چلائی، نوجوان گرا اور شہید ہو گیا۔ فوراً اس کی جگہ پہ دوسرا نوجوان دیوار پہ چڑھا اور اس نے وہیں سے اذان دینا شروع کر دی، اسے بھی گولی مار دی گئی۔ تو اس کی جگہ پہ تیسرا نوجوان دیوار پہ چڑھا، اس نے وہیں سے اذان دینا شروع کی تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اب یہ کشمیری مسلمانوں کے لیے مذہبی جنون کا معاملہ بن چکا تھا۔ ایک ایک کر کے نوجوان دیوار پہ چڑھتے چلے جاتے، اذان کو جاری رکھتے اور پولیس ان کو گولیاں مارتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اذان کے مکمل ہونے تک 22 نوجوان شہید ہو چکے تھے، لیکن اذان مکمل ہو چکی تھی۔ اس سانحے نے کشمیر کی تحریک پہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ گلی گلی میں احتجاج ہونے لگ گیا اور اس کے ساتھ پنجاب بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہر گلی سے آوازیں آنے لگیں، چلو چلو کشمیر چلو۔ یوں کشمیر کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ڈوگرا راجاؤں کے لیے اس تحریک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو برطانوی حکومت کو اس میں دخل اندازی کرنا پڑی۔ انگریزوں نے ڈوگرا راجاؤں کو یہ حکم دیا کہ وہ کشمیر پہ اپنا ظلم و ستم بند کریں، لیکن کشمیری اب اس طرح سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اور یوں کشمیر میں پہلی بار 14 اگست 1931 کو یوم شہداء اور کشمیر ڈے منایا گیا۔ ادھر برِ صغیر میں مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو دوسری طرف کشمیری اپنی آزادی کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ آ گیا جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ برِ صغیر میں موجود 562 ریاستیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گی۔ وہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں، وہ ریاستیں بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، یا وہ ریاستیں اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اگست 1947 میں پاکستان کے عوام کو ان کا ملک مل گیا۔ ہندوستان کے عوام آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگے، لیکن کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دھوکہ ہو گیا
कि उसे जुल्म जबर के इस्तबदादी पंजे में एक मरतबा फिर जकड़ लिया। भारत की अफवाज कश्मीरियों की मदद करने के बहाने कश्मीर में दाखिल हुई और आज तक कश्मीर पे जुल्म सितम का वो सिलसिला जारी है। भारतीय फौज का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तानी फौज जुलाई में कश्मीर में दाखिल हुई और वो कश्मीरियों को पाकिस्तानी फौज से बचाने के लिए दाखिल हुए, लेकिन मामला तो वही था कि कश्मीरी अवाम एक हाथ से निकले और दूसरे हाथ के गुलाम बन चुके थे। इधर पाकिस्तान का हाल देखिए। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरक कहता है। 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 फरवरी को यौम शहदाई कश्मीर और यौम यकजहती कश्मीर मनाने का फ़ैसला किया। 1990 में काजी हुसैन अहमद, बेनज़ीर भुट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि वो 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया करेंगे। 2004 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने यौम यकजहती कश्मीर सरकारी सतह पे मनाने का फ़ैसला किया, मगर अफसोस कि पाकिस्तानी हुकूमतें सिर्फ ये दिन ही मनाती रहीं और ये कश्मीर के लिए अमली तौर पे कुछ ना कर सकीं। जो भी करारदाद पेश की जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने उस करारदाद को रद्द कर देता है। दूसरी तरफ कश्मीर में आए दिन मकबूल भट्ट और अफजल गुरु जैसे नौजवान फांसी लग रहे हैं। यहाँ पर मशीरुल हक और बुरहान वानी जैसे लोग शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग जेलों में चक्की पीसते पीसते इस दुनिया से जा चुके हैं और यहीं पे मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, उमर अब्दुल्ला और यासीन मलिक जैसे लोग जेल की सुलाखों के पीछे कैद हैं, मगर इनका किसी को कोई एहसास नहीं है। इधर एक तरफ पाकिस्तान की ये जिद है कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो दूसरी तरफ भारत इस बात पे अड़ चुका है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है। भारत ने कश्मीर में आइन की शिक 370 मुअत्तल कर दी है। आइन की शिक 370 कश्मीर को आज़ादी और खुद मुख्तारी का हक देती है। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली है? क्या कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत छीन लिया गया है? क्या कश्मीर की खुद मुख्तारी पे कब्जा कर लिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा इस पे मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखेगा? अल्लाह ताला ने कश्मीर को इस दुनिया में जन्नत की मिसाल बनाया है, तो फिर ये खित्ता जन्नत नज़ीर जहन्नम का मंजर क्यों पेश कर रहा है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिन रात बिलखते सिसकते क्यों हैं? यहाँ पे इज्जतें क्यों लूटी जा रही हैं? भाई क्यों शहीद किए जा रहे हैं? बाप क्यों गुमशुदा होते चले जा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कश्मीर का कुल रकबा 84,471 मरबा मील है, मगर ये रकबा मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ इसमें गिलगित और आज़ाद कश्मीर के हिस्से आते हैं, मगर ये बात है कि पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है और भारत इसे मकबूजा कश्मीर कहता है। फिर इसके बाद शख्सगाम और सियाचिन ग्लेशियर के हिस्से आते हैं। उसके बाद अक्साई चीन का हिस्सा है जो चाइना के पास है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर है जो हिस्सा भारत के पास है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कश्मीर ये जन्नत है तो ये इतने हिस्सों में तकसीम क्यों हो चुकी है? आज की वीडियो का एक ही बड़ा सवाल है, कश्मीर आखिर किसका है? क्या कश्मीर अफगानियों और ईरानियों का है? क्या कश्मीर चीन वालों का है? क्या कश्मीर हिंदुओं, महाराजाओं, मुसलमानों, ठाकरों, डोगरों का है? तो जवाब ये है, कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर पे हुकूमत करने का हक अफजल गुरु और उसकी नस्ल का है। कश्मीर पे हुकूमत करने का हक मकबूल भट्ट और उसकी नस्ल का है। कश्मीर पे हुकूमत करने का हक बुरहान वानी जैसे नौजवानों का है। कश्मीर पे हुकूमत करने का हक यासीन मलिक का है। कश्मीर पे हुकूमत करने का हक मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का है, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। यह हक़ राय दही का शोर मचाने वाले कश्मीर की जान छोड़ दें। कश्मीर को अपनी शहरक कहने वाले कश्मीर का पीछा छोड़ दें। कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देने वाले कश्मीर से निकल जाएं और ये कश्मीर से जुल्म सितम की ज़िंदगी का खात्मा करें। कश्मीर की फ़ज़ा से बारूद की बजाय मोहब्बत की महक आए। कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से जी सकें, अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बना सकें, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर तो उसका है यारो जो कश्मीर का बासी है, जो जान लुटाए इसके लिए, घर बार लुटाए इसके लिए। तुम कहते हो इसे देश अपना, क्या अपने देश के लोगों पर कोई यूं भी जुल्म उठाता है? ऐ बाहर से आए बाशिंदो, ताकत की हवस के पाबंदो, जो जुल्म का अलम उठाएगा वही गासिब है, वही आसी है। कश्मीर तो उसका है यारो जो कश्मीर का बासी है, जो कश्मीर का बासी है। अगर आपको ये लगता है कि कश्मीर कश्मीरियों का है तो इस वीडियो को फैलाइए ताकि हक परस्त इस नज़रिए को कबूल कर लें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरबी गौहर को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.